تو یہ سارا جو چراچر ہے بھگوان، ہوں یہ میں استھت ہے، برہم ہے. ہوں تو یہ جو ہم جو محسوس کرتے ہیں خود کو ہوں سبھی سبھی دشاؤں میں، سبھی چیزوں میں، سبھی برہمانڈ میں ہوں جو بھی محسوس ہم کر رہے ہیں ہوں خود کا میں کا اپنا، ہوں تو اب اس میں کیسے جیا جائے؟ جیسے ہوں اگربتی کی سگندھ گھل جاتی ہے ہوا میں، ہوں تو ایسے ہی اب گھل جانے کا من کرتا ہے. ہوں نارائن کو نارائن میں میلٹ کر دو. ہاں جی، ہاں جی. جی اصل میں نا جو آپ بولتے ہیں نا کہ سب میں کیسے خود کو پہچانوں یا سب جی میں اپنا احساس کیسے کروں، اصل میں وہاں سب ہے ہی نہیں. وہ جی آپ ہی ہو. ہاں جی وہ سب کچھ آپ ہی ہو. جی ہاں جس سے آپ ایک ہونا چاہتے ہو نا وہ پہلے سے آپ ہو. تو دو بار ایک کیسے ہوگے؟ جی 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 پہلے سے ایکاکار ہے، پورا استتو ایک ہے جی پہلے سے. جب آپ الگ مانتے ہو اپنے سے اس استتو کو، اس سمے بھی ایک ہے. جی ہاں ٹھیک اس سمے بھی نا سب کچھ ایک ہی ہے. واہ جی ہاں تو ایک ہی ستیہ ہے پورے چراچر میں. جی ایک ہی پرماتما اور ایک ہی استتو. وہ استتو میں ہوں. جی کیول میں. تو جو آپ کو ادرنیس لگتی ہے نا، دوسرے پن کا بھاؤ، جی اپنے آپ کو ہی آپ دوسرا سمجھتے. جی ہاں اور پھر دوسرا کیسے ہٹ جائے جی اس چکر میں کیا کیا پتا نہیں کرتے. ہاں جی آپ دوسرے کو دوسرا نہیں سمجھتے ہو یار، اپنے آپ کو ہی دوسرا سمجھتے ہو. جی ہاں میں ہی تو بولتا ہے نا. جی پہلا ہی تو دوسرا بولتا ہے. ہاں تو دوسرا دوسرا کہاں ہے؟ یہ پورا اکھنڈ استتو ہے. اب یہ بولتا ہوں اس سے بیٹر ہے کہ آپ اکھنڈ استتو ہو.
یہ بولنے میں بھی نا تھوڑی دوری ہو جاتی ہے. جی آپ اکھنڈ استھت ہو. سرو سہت سرو رہت. اور ایکچوئل میں آپ کے اترکت کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. نہ ہو سکتا. اور پورے پرابلم کی جو جڑ ہے نا وہ دیہابھیمان. دیہ کا ابھیمان کی میں دیہ ہوں. جی ہاں میں جیو ہوں یا میں دیہ ہوں ہے نا. اور تین کال میں دیہ ہے ہی نہیں. جی اس بھاؤ کے بنا دیہابھیمان کا تیاگ نہیں ہو سکتا. جی بھائی ہاں یعنی جیسے یہ دیہ ہے میں اس کو دیکھنے والا ہوں جاننے والا ہوں اس سے کچھ نہیں ہونا ہے. جی سمجھ رہے ہو؟ جی جی ہاں یہ شریر ہے یہ میں دیکھنے والا ہوں ساکشی ہوں جاننے والا ہوں اس سے کبھی بھی دیہابھیمان کا تیاگ نہیں ہوگا یاد رکھنا. جی ہو دیہ تین کال میں ہے ہی نہیں. اس بھاؤ کے بنا دیہابھیمان کا سروتھا تیاگ ہو ہی نہیں سکتا. جی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ شریر میں نہیں ہوں یہ من میں نہیں ہوں یہ سنسار میں نہیں ہوں ہے نا. یہ جی بھاؤ میں نہیں ہوں یہ ہو گیا نیتی نیتی نشید ٹھیک ہے. اور میں جی شریر بھی ہوں من بھی ہوں سنسار بھی ہوں. یہ ہو گیا یتی یتی. میں بھاؤ بھی ہوں وچار بھی ہوں یہ سب کیا ہو گیا یتی یتی. جی بھائی اس کو بولتے ہیں ودھی یتی یتی کو کیا بولتے ہیں ودھی. اور نشید یعنی نیتی نیتی. جی اب یتی یتی اور نیتی نیتی یہ دونوں مانیہتا جگت میں ہے. آتم جگت میں یہ دونوں بھی نہیں ہے. جی جی سوم میں یہ دونوں بھی نہیں ہے. ہاں ہاں کہ میں یہ بھی ہوں اور یہ بھی نہیں ہوں ہے نا. پورے دنیا میں کیا فارمولے چل رہے ہیں دیکھو کہ میں شریر سے الگ ہوں دیکھنے والا ہوں شریر نہیں ہوں من نہیں ہوں یہ دنیا نہیں ہوں ہے نا. پھر میں شریر بھی ہوں من بھی ہوں بھاؤ بھی ہوں یہ سنسار بھی ہوں. یہ دونوں چیزیں ہی چل رہی ہے نا. اور سوم میں آتم دیو میں یہ دونوں ہے ہی نہیں. یہ مانیہتا جگت میں جی اس لیے فالس ہے. اس لیے کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے سوم میں جہاں پہنچا ہی ہوا ہے. جی جی ہاں ہم تو ٹھوک بجا کے بولتے ہیں نا صاف صاف. جی مانیہتا
کو پکڑ کے چلو گے تو کیسے آپ جانو گے سوئم کو؟ تو 3 کال میں، بھوت بھوشیہ اور ورتمان میں، کبھی بھی شریر من اور یہ سنسار ہوا ہی نہیں. یہ آتم دیش ہے، جی بھگوت دیش ہے کہ 3 کال میں یہ شریر من اور سنسار کبھی بھی ہوا ہی نہیں. جی 3 کال میں شریر من اور سنسار ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. اس بھاؤ کے بنا شریر من اور سنسار کا تیاگ ہو ہی نہیں سکتا. سروتھا تیاگ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیاگ. تو ماننے میں دیہ ہے، جاننے میں میں آتما ہوں. جی جی ہے نا؟ ماننے میں گلاس ہے، جاننے میں اسٹیل ہے نا. ماننے میں گلاس ہے، تھالی ہے، چمچ ہے، پلیٹ ہے. جاننے میں تو بس میں آتما ہوں، جی 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 وہ کیول میں ہوں. تو ماننے میں ایسے دیہ ہے، من ہے، سنسار ہے، یہ مانا ہوا ہے بس. تو ماننے والا کون؟ میں ہی مانا نا. جی وہ میں. ٹھیک، میں نے ہی مانا. اور کس سے مانا؟ میں سے ہی مانا. اور کس پر مانا؟ میں پر ہی مانا. تو میں نے میں پر میں سے میں کو ہی مانا. میں نے میں سے میں پر میں کو ہی مانا. اسٹیل نے اسٹیل پر اسٹیل سے اسٹیل کو ہی مانا. اب کیا مانا اس کو چھوڑ دو. شریر مانا، من مانا، سنسار مانا، اس کو چھوڑو نا. جی 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 ہاں. تو میں نے میں سے میں پر میں کو ہی مانا. اس لیے 3 کال میں شریر من اور سنسار کبھی بھی ہوا ہی نہیں. تو سوئم پہ، آتما میں نشٹھا رکھو. جی کیونکہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ آتم گمیہ ہے، بدھی گمیہ نہیں ہے. اس کو بدھی گرہن نہیں کر سکتی آپ. اس کو آپ کی آتما ہی گرہن کرے گی.
کیونکہ آتم دیش میں کبھی بھی دوسرے دیش ہوئے ہی نہیں. شریر دیش، من دیش، مایا کا دیش کبھی بھی ہوا ہی نہیں. اس لیے اس کو آتما ہی، آپ کا سوئم ہی اس کو گرہن کرے گا. جی اس لیے سوئم پہ نشٹھا، آتم نشٹھا. آتم نشٹھا سے شریشٹھ کچھ نہیں ہوتا. تو آتم نشٹھا کیا ہے؟ بتائیے. میں کو میں جان پربھو. یس. میں کو دوسرا میں جان، اس کو کچھ بھی مت مان. ہاں، اور کیا بول رہے تھے آپ؟ میں روک دیا. میں کو میں جان، اس کو کچھ بھی اور مت مان. یعنی ہاں، تو جس کی درشٹی میں جی آتم نشٹھا کیا ہے معلوم؟ جس کی درشٹی میں برہما، وشنو اور مہیش کا ویبھو، چمتکار اپنے سے بڑا پرتیت نہ ہو. جس کی جی درشٹی میں برہما، وشنو اور مہیش کا چمتکار اور ویبھو اپنے سے بڑا پرتیت نہ ہو. جی جی اور ایک گلت کشٹ والا بھکاری جس کو کوڑھ ہو گیا ہے، اپنے سے چھوٹا پرتیت نہ ہو. جی ایک کیڑا مکوڑا اپنے سے چھوٹا پرتیت نہ ہو. اس کو بولتے ہیں آتم نشٹھک. جس کی ایسی نشٹھا ہو سوئم میں. جی تو آتم وت ہونا الگ چیز ہے نا؟ کہ آپ اس کو، آتما کو جان لیے اور اس کے بارے میں بولنے لگ گئے، وہ ایک الگ چیز. جی پرنتو آتم نشٹھ ہونا اتی درلبھ. آتم نشٹھا الگ ہی چیز ہے. آتما کو جان لینا الگ چیز ہے، اور آتم نشٹھ ہو جانا اتی درلبھ. جی تو آتم نشٹھا یعنی نا آنند ہی آنند، نجانند کی مستی ہے. جیسے سمندر نا جل سے پریپورن رہتا ہے. سمندر یعنی کیا ہے؟ جل ہی جل ہے نا. اور جی سمندر جل سے پریپورن رہتا ہے. ایسے ہی آتم نشٹھک آنند سے پریپورن رہتا ہے. اس کو اپنے میں کسی بھی پرکار کا ابھاؤ محسوس نہیں ہوتا. آتم نشٹھک کو کسی بھی پرکار کا ذرا سا بھی اپنے میں ابھاؤ محسوس نہیں ہوتا. تو جب ابھاؤ ہی نہیں ہے، خود میں کوئی کمی ہی نہیں ہے،
تو کامنا کیسے اٹھے؟ کامنا تب اٹھتی ہے جب آپ میں کوئی کمی ہوتی ہے. تو سوپن میں بھی اس کو کوئی کامنا نہیں ہوتی کسی بھی طرح، کیونکہ لبالب بھرا ہوا ہے آنند سے، بھرپور سے، ज्यों का त्यों भरपूर. تو بھیا آتمنشٹک رہو، ہے نا، اور اویئر رہو سوئم کے پرتی. سوئم کو کچھ بھی مت ماننا کبھی بھی. تو میں آتما بھگوان کو کچھ بھی مان لینا ہی مایا ہے. جی یہ بھائی. جو مایا آپ لوگوں کو گھیری رہتی ہے نا، سمجھ جانا آپ نے سوئم آتما بھگوان کو کچھ مانا ہے، تبھی وہ مایا ہو گیا. بھگوان ہی کیا ہو گئے؟ مایا. مایا ہو گئے. تو میں آتما بھگوان کو کچھ بھی مان لینا مایا ہے. جی. تو ماننا مایا ہے اور جاننا آتما ہے. میں. تو آتم نشٹا کیا ہے؟ گیان مان جہاں ایکو نہیں، جہاں نہ ماننا ہے نہ جاننا ہے. جی. ہاں. جی. کوالٹی کیا ہوتی ہے آتم نشٹک کی؟ ارے میں کچھ بھی مان لوں، رہوں گا تو میں نا. جی. مان لینے پر بھی ہاں. میں کو شریر مانوں، برہم مانوں، من مانوں، سنسار کچھ بھی مانوں، میں کو کچھ مان لینے پر بھی میں جیسے کا تیسا رہتا ہوں. اور میں کو آتما جان لینے پر بھی میں جیسے کا تیسا رہتا ہوں. جی. جی. آتما بڑھ توڑی نہ جاتی ہے جان لینے پر. جی. جی. بھائی آتما تو آپ ہو ہی نا. جی. جی. جان لینے سے وہ بڑھ نہیں جائے گی اور مان لینے سے گھٹ نہیں جائے گی. ہاں. ہاں. یس. تو جہاں جاننا اور ماننا نہیں، وہی آتم نشٹا ہے. جہاں جاننے اور ماننے کا انت ہو گیا، یس، وہی آتم نشٹا ہے. گیان مان جہاں ایکو نہیں، جہاں نہ کچھ جاننا ہے نہ کچھ ماننا ہے. تو ابھی کے ابھی جو آپ سہج ہو، بس ہو، بے شرط. جو سہج ہو، جہاں آپ میں ہوں بھی نہیں بولتے اور آپ ہو.
बस वही पॉइंट है आत्मनिष्ठ का, जी सहज। हाँ, वहां कुछ जानना समझना है ही नहीं। जी बाबा। तो जो अभी के अभी आप सहज हो, बस आप हो, होना मात्र, उसी को आप क्या बोलते हो, यहाँ कुछ नहीं है, शून्य है, तो आप पतन हो जाता है आपका। जी जी उसी को आप बोल देते हो शरीर है, मन है, मेरी दुनिया है, स्त्री है, पुरुष है। उसी स्वयं को आप जो बस हो, एक लेबल चिपका देते हो, तो पतन हो जाता है। तत्क्षण पतन होता है। इसलिए मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। अगर यहीं पर मैं को, हाँ बोलो। भगवान, बोलो। हम्म। मैं पे निष्ठा आ गई तो वहां तो पतन उत्थान है ही नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, आत्मनैष्ठिक में नहीं होता, जी कभी भी पतन और उत्थान नहीं होता। सही बोल रहे हो आप। लेकिन मैं से भिन्न आपने कुछ भी माना इस पूरे विश्व में, जी एक कण को भी मैं से भिन्न माना, तब पतन होगा। जी और आप जान गए कि मैं के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं, तो पतन और उत्थान का बात ही खत्म। जी मैं को इवन आपने भगवान भी माना, जी वहां तक माया है कि मैं भगवान हूं, यहां तक जी माया। माया है। मैं ब्रह्म हूं, जी यहां तक माया का देश है। जी जी ब्रह्म तक। हाँ, जी तो मैं देह हूं, तो आप क्या हो जाओगे, कर्म कांडी। जी मैं जीव हूं, तो आप क्या खोजोगे, भगवान। जी ठीक। मैं ब्रह्म हूं, जी तो आप हो गए ज्ञानी। जी हाँ, मैं जीव हूं तक आप हो गए उपासक, जीव ही उपासना जी करता है ना। जी जी और मैं ब्रह्म हूं, ये आप हो गए ज्ञानी। और जी मैं ब्रह्म हूं तक माया। जी और बस लास्ट में ये सब को निकाल दो, मैं और हूं के बीच से शरीर को, जीव को और ब्रह्म को निकाल दो। जी बस मैं हूं, मैं हूँ। बस जस्ट यू आर। यही परम मैं को, विश्राम। हाँ बोलो। यही मैं को मैं जानना है। यस, परफेक्ट। यही मैं को मैं जानना है। हाँ, राइट एकदम।
बस मैं हूँ परम विश्राम, अनिर्वाच्य विश्राम। तो फिर अंततः मैं हूँ भी नहीं बोलना पड़ता, और मैं और हूँ के बीच की जो शांति है वो जी प्रकट रहती है। हाँ, क्योंकि ये मैं हूँ बोलने वाला नहीं है, संज्ञा नहीं है कोई, ये है ना, ये तो है ही ना। जी हाँ, इसमें बोलने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, तो अंत में मैं हूं तक आए, है ना, और फिर मैं की भी याद नहीं, है ना, मैं हूं बोलने की भी जरूरत नहीं। बहुत नहीं। जी तब जो मैं हूं है, जहां बोलना नहीं पड़ता मैं हूं को। जी जी एक एक ऐसा भी देश है ना जहां बोलना नहीं पड़ता मैं हूं को, जी और मैं सदा रहता है। जी। वही मैं हूँ, वही असली में। असली वाला, जहां बोलना नहीं पड़ता मैं हूं को, जी फिर भी मैं रहता तो हूँ। जी 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 भगवान। तो स्वयं पे निष्ठा, आत्मनैष्ठिक रहो बस। तब लास्ट में, समझ रहे हो, जी यानी शुरू में हम विषय से बचते हैं, आओ। कि विषय से दूर जाते हैं ना, विषय विष की भांति है ना, जी जी उससे एक दूरी बनाते हैं, उसको बोलते हैं दुर्लभो विषय त्याग। विषय का त्याग दुर्लभ है। यानी ये जो विषय चल रहा है ना, इसका त्याग दुर्लभ है। कोई कोई विरला विषयों को त्याग पाता है। जी नहीं तो मुश्किल है, हर कोई विषय में ही चिपका हुआ है ना, विषय का रस नहीं छोड़ पा रहा है वो। जी अध्यात्म को भी विषय बना लिया है, परमात्मा को भी विषय बना लिया, इतना विषय में रस हो गया। जी अरे सांसारिक इंटरटेनमेंट नहीं, आध्यात्मिक इंटरटेनमेंट चल रहा है आजकल। जी जी हाँ हाँ, और क्या चल रहा है पूरा दुनिया में। आज ये ध्यान, कल वो ध्यान, परसों वो ध्यान, आज ये गुरु कल वो गुरु, परसों वो गुरु। अब इसमें ऐसा आज डूबा है ज्ञान में, हाँ इसमें ऐसा डूबा है कि पता ही नहीं है उसको कि वो। हाँ, विषय में चिपक गया ना, यानी चैनल बदल रहा है बस। जी अब वो सोच रहा है मैं सही जा रहा हूँ। हाँ, जी जी विषयी क्या सोचता है, मैं सही जा रहा हूँ।
جی क्यों सोचता है मालूम है आपको? विषय मैं सही जा जी रहा हूँ, जा तो गलत रहा है ना वो, जी जी क्योंकि पूरी भीड़ विषयी की है, इसलिए उसको लगता है यार सब भी जा रहे हैं, मैं भी सही जा रहा हूँ। जी जी। सत्य। हाँ, सब सब धन कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, यानी मैं सही जा रहा हूँ। जी हाँ, सब इज्जत शोहरत कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, यानी मैं सही जा रहा हूँ। इतना बड़ा ट्रैप है, इसलिए विषय का त्याग दुर्लभ, अति दुर्लभ। तो दुर्लभो विषय त्याग। तो अष्टावक्र उसमें बोलते हैं ना जनक को कि विषय को विष की भांति त्याग दे जनक। हाँ, ये सब को सीधा बोल दिए वो विष है, जी डायरेक्ट एक ही लाइन में खत्म। विषय इसलिए विष है कि आपको जीते जी मारता है। जी हाँ, आपको धोखा भी देता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको मारते रहता है। जी तो दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभो तत्व दर्शनम। उससे दुर्लभ क्या है? तत्व का दर्शन, आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, दर्शन। या जी। स्वयं की सही सही पहचान। पहचान। स्वयं की बुद्धि से पहचान नहीं, स्वयं की स्वयं से पहचान। जी स्वयं की बुद्धि से पहचान आज की डेट में 99% तथाकथित ज्ञानियों को है। 0.99 बोलना भूल गया था, है ना? हाँ, स्वयं की बुद्धि से पहचान ऑलमोस्ट सभी को है। जी स्वयं की स्वयं से पहचान वाले विरले हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों लाइनों में, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो स्वयं की स्वयं से पहचान, और स्वयं से स्वयं की क्या पहचान है? स्वयं ही हो जाना स्वयं की सही पहचान है। स्वयं ही हो जाना, और स्वयं हो जाना क्या है? कि स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं। जी बाबू। स्वयं के बिना भी कुछ नहीं होता, और स्वयं से भिन्न कुछ नहीं होता। यानी 33 करोड़ देवी देवता मैं ही हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं ही हूं। चींटी से लेके हर जीव जंतु मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ये तो ज्ञात हो गया, इतना अपन जानते हैं। अज्ञात भी मैं से भिन्न नहीं है, अज्ञेय भी मैं से भिन्न नहीं, और भिन्न भी मैं से भिन्न नहीं। जी और मैं के अतिरिक्त लास्ट में, मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
तो तत्व दर्शन क्या है, आत्मा का दर्शन क्या है? जिसको मैं से भिन्न कुछ दिखता ही नहीं है, न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है, न कुछ जानने में आता है, जी मैं से अलग। स्वयं से अलग। जी जिसके लिए अदरनेस ही समाप्त हो गई, दूसरेपन का भाव। पूरा विश्व जिसकी आत्मा हो गई, और जिसको कुछ भी अन्य प्रतीत ही नहीं हो रहा। न अन्य, कृष्ण क्या बोलते हैं, मुझे अनन्य भक्त प्रिय है अर्जुन, जो मेरे से अन्य नहीं समझता खुद को। न अन्य, अनन्य। तो दुर्लभो तत्व दर्शनम, तत्व का दर्शन, आत्म दर्शन और ज्यादा दुर्लभ, विषय के त्याग से कई गुना ज्यादा दुर्लभ है आत्मदर्शन। अरे जिसका दर्शन नहीं होता उसका दर्शन कैसे करोगे? जो कभी विषय बनता ही नहीं उसको कैसे देखोगे? तो कुछ भी दर्शन न होना ही आत्मदर्शन है। हाँ जी भगवान। हाँ। जी जी अब मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं तो दर्शन अब कैसे होगा? कोई दर्शन नहीं होगा ना भाई। जी 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 ऐसा कुछ दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार, विषय हो जाएगा ना। जी अगर जी। भगवान भी दिखा तो वो भी विषय हो गया ना। हाँ भगवान। हाँ, और विषय तो अपन पहले ही छोड़ दिए हैं। जी जी। दुर्लभो विषय त्याग में, से आ है गए। ना। जी 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 आपकी कल्पना का भगवान और ये सब जो है विषय है, ये सब है ना। जी जी तो कुछ भी दर्शन न होना ही भगवत दर्शन है। हाँ, अब जी बताओ। जी। कुछ भी दर्शन न होना ही भगवत भगवत दर्शन। दर्शन। उसको आत्म दर्शन बोल लो, भगवत दर्शन बोल लो, एक ही बात। शब्दों में नहीं फंसना है। जी जी। वाह। कुछ भी दर्शन न होना ही भगवत दर्शन। जी। वाह। और भगवत स्मरण क्या है? किसी भी तरह का स्मरण न होना ही जी। भगवत स्मरण है। वाह। जी भगवान, मजा आ गया।
किसी भी तरह का स्मरण न करना जी ही असली वाला भगवत स्मरण है, ओरिजिनल। हाँ, जी ब्रांड है ये, है ना? जी कॉपी नहीं है। जी भगवान। किसी भी तरह का स्मरण न करना ही भगवत स्मरण है। तो किसी भी तरह का स्मरण न करना, हम क्या करते हैं? सहारा खोजते हैं, है जी ना? भगवान। जी जी हाँ, अवलंबन खोजते हैं, सहारा खोजते हैं। हाँ। तो भैया जो खुद बेसहारा है वो सहारे से कैसे मिलेगा? हाँ, भगवान कहीं भी है, सपोज, तो वो किसी का स्मरण कर रहा है क्या? नहीं नहीं। बताओ मेरे को। हम्म, अगर स्मरण कर रहा है तो वो भगवान कहलाने योग्य नहीं है। स्मरण जीव करता है यार। जी जी हाँ, तो भगवान क्या करता है? किसी भी तरह का स्मरण नहीं करता। जी जी भगवान। जी 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 तो भगवान से मिलना है अपने आप से, तो कैसे मिलोगे? आप भी बस ऐसे ही जियो, किसी भी तरह का स्मरण मत करो, खत्म बात। हाँ, जी भगवान। किसी भी तरह का स्मरण कभी मत करना, तब आप भगवान देश में हो, स्वयं आत्म देश में हो, परमात्म देश में हो, जो बोल लो। जी जी तो किसी भी तरह का स्मरण न करने का साहस केवल आपकी आत्मा में है, आपके मन बुद्धि में नहीं। आपके मन बुद्धि घबरा जाएंगे, बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, ये अज्ञानी है, बोलेंगे आप, आपका मन बुद्धि। जी जी हाँ, तो हमारी बातों को आत्मा से ग्रहण करो भैया, मन बुद्धि से नहीं। डायरेक्ट वाले हैं हम। तो किसी भी तरह का स्मरण न करना, यही भगवत स्मरण। दो क्षण जी के देख लो इस पॉइंट में, दो क्षण, वो खुद बता देगा कितना आनंद है इस क्षण में। जी जी बगैर स्मरण के किसी भी तरह का, न सांसारिक न आध्यात्मिक, ऐसा नहीं कि खुद को फिर साक्षी समझ रहे हो, ये वो कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का स्मरण न करना। इवन मैं मुक्त हूं ये स्मरण भी न करना, मैं परमात्मा हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं बोलना भी बहुत बारीक सा बंधन है। जी हाँ, हाँ, बहुत बारीक सा। जी हाँ जी, अरे मैं निर्भर हूं बोलना भी बहुत हल्का सा भार है यार। हाँ जी 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 भगवान। क्या बोलना बार बार खुद को, निर्भर हूं, मुक्त हूं, बुद्ध हूं, है ना? इवन मैं बुद्ध हूं,
बोलना भी ना, यानी बुद्धत्व पे थोड़ा सा कलंक है ना। जी 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 बाबू। हाँ, जी तो किसी भी तरह का स्मरण नहीं करना। जी। क्या? किसी किसी भी तरह। भी तरह का स्मरण नहीं करना, जी यही भगवत स्मरण। जी जी बाबू। भाई मैं शरीर हूँ, मन हूँ, दुनिया हूँ, पापी हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, ये तो स्मरण करना ही नहीं है, ये तो महापाप जी है। जी जी ठीक है। बाबा। जी अब मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ये स्मरण भी नहीं करना, ये महापुण्य है। ठीक है। जी जी बाबा। तो न महापाप का स्मरण करना, न महापुण्य का स्मरण करना, जी जी। किसी भी तरह का स्मरण न करना ही भगवत स्मरण है। हाँ। जी आज तो कोई साहस करता है ना कि यार अब कोई स्मरण ही नहीं करना है, किसी भी तरह का स्मरण करना ही नहीं है। एकदम बेफिक्र, निश्चिंत, बेखौफ। मैं हूं तक का स्मरण न करना लास्ट में, है ना। जी जी। पहले तो भाई मैं शरीर हूं, ये हूं, वो हूं का नहीं करना, महापाप। फिर हाँ महापुण्य कि राम हूं, कृष्ण हूं और ये सब हूं, बुद्ध हूं, शुद्ध हूं, इसका भी स्मरण नहीं करना, महापुण्य, है ना। जी। अब मैं और हूं से अब सब निकल गया बीच से। हाँ अब मैं हूं का भी स्मरण न करना, जी ये भक्ति देश। तो याद की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। बट लास्ट में अपने जो बोलते हो ना मैं हूं, उसको छोड़ना, बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा रहता है। हाँ, जी। उसका भी स्मरण नहीं। हाँ प्योर साइलेंस। तो किसी भी तरह का स्मरण न करना क्या है? परम शांति है। जी। मतलब एक शांति होती है अशांति के अपोजिट, हाँ वो कभी रहती है, कभी नहीं रहती। नहीं। जी और एक होती है परम शांति, सहज शांति। जी
सदैव रहने वाली शांति। तो जो अशांति का अनुभव करता है और शांति का अनुभव करता है, अनुभव करने वाला परम शांति है। शांति का और अशांति का अनुभव करने वाला परम शांति है। वहां गौर से देखो तो वहां किसी भी तरह का स्मरण पहले से नहीं है। राइट? राइट राइट, परफेक्ट। परफेक्ट। यस। तो शांति और अशांति का जो अनुभव करने वाला है, जो आप स्वयं हो, वहां पहले से किसी भी तरह का स्मरण है ही नहीं। पहले से ऐसा ही है। जी किसी भी तरह का दर्शन है ही नहीं। वहां किसी भी तरह का शरीर और मन और संसार कभी हुआ ही नहीं पहले से। मेरे बताने और आपके समझने से नहीं, पहले से। जी, एकदम साफ था ना। यानी ये सब कभी भी हुआ ही नहीं। जिसको आप हटाना चाहते हो ना, आत्मदेश में, ये कभी भी हुआ ही नहीं। तो मैं जानता ही नहीं कि ये शरीर, मन और संसार कब हुए, किसको हुए और क्यों हुए। जी जी जी, होगा। हाँ अब ज्यादा हो रहा है। आत्मा के लिए नहीं हो रहा है। एकदम सही चल रहा है प्रभु, एकदम जबरदस्त। चलने दो। कौन बोल रहा है ये? आशीष, आपका फेवरेट। अच्छा, आशीष जी हो है क्या? हाँ, ठीक प्रभु, सही जा रही है गड्डी यानी। ओके। एकदम। तो भैया मैं जानता ही नहीं ये शरीर, मन और ये संसार कभी हुए भी कि नहीं हुए। जी जी, किसको हुए, कब हुए और क्यों हुए, ये मैं जानता ही नहीं यार। अरे कब गुरु हुआ, कब शिष्य हुआ, ये मैं जानता ही नहीं। कौन गुरु हुआ, कौन शिष्य हुआ, ये आत्मा जानता ही नहीं है यार। कौन जीव हुआ, कौन परमात्मा हुआ, ये आत्मा को पता ही नहीं है, सच बताऊं तो। ये सब जीव को पता होता है यार।
आत्मा को थोड़ी ना पता होता है, वो तो बेफिक्र रहता है। हाँ, बेखौफ। होने और न होने के पार बैठा है वो, अस्तित्व और अनस्तित्व के पार विराजमान है बेफिक्री के सिंहासन में। परे से परे है और अभी भी मौजूद है। उसको कहाँ पता कौन जीव है, कौन गुरु है, कौन अज्ञानी है, कौन बुद्ध है, उसको पता ही नहीं होता है सब। उसको मतलब मैं को पता ही नहीं होता। तो मैं क्या बोलता है मालूम? मैं एक तो देखो भाई, सदा से खामोश है, मौन है, महामौन है ना। जी जी आज तक मैं कभी कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, जी जी। बट बट मैं इतना कमजोर नहीं है कि बोल ना सके। जी जी जब बोलता है ना तो मैं को ही बताता है। और कुछ नहीं बताता वो। उसका हर शब्द मैं ही होता है। और साइलेंस, मौन और वाणी के परे का शब्द होता है उसका। परावाणी और मौन के परे का शब्द होता है उसका, मैं का। तुरंत लगता है अंदर आपके मैं में। और आपका मैं जो कि मेरा भी मैं है, एक ही है, मैं को जान लेता है। जी भगवान। तो मैं क्या बोलता है, किसी भी तरह का स्मरण नहीं करना। अब एक बात सच बताना यार, है ना, भगवान का भी स्मरण, जो भी नाम लो आप, जैसा भी लो, कहीं ना कहीं भार है कि नहीं? अरे भाई देखो, जिसका कभी भी विस्मरण हुआ ही नहीं, उसका स्मरण करोगे कैसे? अपने आप का कभी भी विस्मरण हुआ क्या? तो स्मरण करोगे कैसे? जिसकी स्मृति विस्मृति हुई ही नहीं, उसको कैसे स्मरण करोगे? जो स्मरण के परे है और विस्मरण के परे है, उसको कैसे स्मरण करोगे? अगर आप स्मरण करते हो तो आत्मदेश से नीचे आते हो, तभी कर पाओगे।
तो किसी भी तरह का विस्मरण, किसी भी तरह का स्मरण न करना ही भगवत स्मरण, तब असली भगवान। किसी भी तरह का स्मरण न करना भैया। हाँ, तो स्वयं इतना निश्चिंत है ना कि वो खुद को स्वयं भी नहीं बोलता यार। मैं स्वयं हूं ऐसा भी स्मरण नहीं करता, इतना निश्चिंत है। मैं हूं भी नहीं बोलता, इतना निश्चिंत है, बेफिक्र। इतना प्रेम है ना कि मैं प्रेम करता हूं कभी नहीं बोलता वो। अरे जो स्वयं प्रेम है वो किसके प्रेम में पड़ेगा? आप खुद को जीव मानते हो तब किसी और के प्रेम में पड़ते हो। कोई और मनुष्य, कोई और भगवान, कोई और शख्स। जब आप स्वयं प्रेम हो तो किसके प्रेम में पड़ोगे फिर? दूसरा तो फिर कहीं है ही नहीं ना। जी जहां प्रेमी प्रेमिका ही नहीं है यार, केवल प्रेम है। जहां भक्त भगवान ही नहीं है, केवल जी भक्ति है। केवल भक्ति मतलब केवल भक्ति, जहां भक्त और भगवान का विस्मरण हो गया। तो केवल पैर दबा रहे हैं ना राम जी के। जी अब केवट है जीव, राम है भगवान। केवट भी भूल गए कि मैं जीव हूं, भक्त जी हूं। और भगवान भी भूल गए कि मैं भगवान हूं। अब वो पैर धो रहे हैं, जो भी हो रहा है। यानी वो पैर नहीं धो रहे हैं, वो भक्ति चल रही है। जी हाँ, जहां भक्त और भगवान का विस्मरण हो जाता है तब असली भक्ति है ये। हाँ प्योरेस्ट फॉर्म है भक्ति का, जहां किसी भी तरह का दंश नहीं है, जहां अंश भी नहीं है और अंशी भी नहीं है। भक्त भगवान दोनों का विस्मरण, तब तो असली भक्ति है भैया। जी अरे राधा को भी पता नहीं राधा है, कृष्ण को पता नहीं कृष्ण है। अब राधा कृष्ण के प्रेम में कृष्ण हो गई और कृष्ण राधा हो गए, है ना। और दोनों को पता नहीं कि दोनों क्या क्या हो गए। जी जो थर्ड पर्सन देख रहा है उसको पता होता है कि ये राधा है और ये कृष्ण है। हाँ जो शास्त्र लिख रहा है ना उसको पता है कि ये राधा कृष्ण हो गई, कृष्ण राधा हो गए, है ना। उनको पता नहीं है
یعنی پریمی بھی گیا, پریمکا بھی گئی, کیول پریم بچا. بھکت بھی گیا, بھگوان بھی گیا, کیول بھکتی بچی. اور پتا نہیں کیا ہو رہا ہے وہ رس کا ساگر. تو جہاں بھکت اور بھگوان کا وسمرن ہو جاتا ہے تب جاننا اصلی بھکتی ہے. یہ سوتنتر بھکتی ہے, پرا بھکتی سے بھی اوپر کا پوائنٹ ہے یہ. جی سوتنتر ایک دم. جی جی. تو یہ کیسی ہے, یہ نہ بھاونا شونیہ ہے, نہ بھاؤ ہے نہ بھاونا شونیہ ہے. سمجھ رہے ہیں, نہ بھاؤ ہے نہ بھاونا شونیہ ہے. اس لیے پرم سکھ دائی ہے. ملنے اور بچھڑنے سے مکت ہے یہ بھکتی. پانے اور کھونے سے. تو میں سویم میں کس سے ملنا اور کس سے بچھڑنا یار. کس کو پانا اور کس کو کھونا. تو جہاں راستہ اور منزل مل کے ناچتے ہیں وہی میں ہوں. کیا بولتا میں. جہاں راستہ اور منزل مل کے ناچتے ہیں وہی میں ہوں. جہاں ملنا اور بچھڑنا راس کرتے ہیں وہی میں ہوں. جہاں کبھی بھی یاد ہی نہیں رہتا کہ میں پیدا ہوا. یہاں تو ہم برتھ ڈے ورڈے کا یاد رکھتے ہیں نا, 30 تاریخ کو برتھ ڈے ہے ایسا کر. ارے جہاں یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کبھی بھی پیدا ہوا یار وہی میں ہوں. اب زیادہ مت نکلواؤ. پیدا ہوا مروں گا یہ سب بکواس ہے جہاں پہ.
ऐसा थोड़ी ना है कि आप चिंता से मुक्त होते हो। अरे जहां कभी भी चिंता हुई नहीं, वही मैं हूं। आप अपने अंदर एक एरिया देखो जो आप खुद हो, वहां कभी भी चिंता हुई ही नहीं भाई, सदा से निश्चिंत है। तो भैया देखो, किसी के यहाँ कोई मर जाता है, किसी के यहाँ दुखद घटना घटती है, कोई किसी को छोड़ देता है, कोई कंगाल हो जाता है, यानी बहुत सारे दुख आते हैं जीवन में। तो बहुत सारे दुख, जीवन में चिंताएं, पीड़ाएं आती हैं, और जिस समय ये सब पीड़ाएं आती हैं, उस समय भी, ठीक उसी समय भी आत्मा निश्चिंत रहती है। बहुत गहरे में आपको पता रहता है, बहुत गहरे में, कि कुछ नहीं हुआ है। वो गहराई ही आप हो। अरे भाई, तभी तो कोई भी दुख टिकता नहीं है ना। जी। अरे भैया देखो, कोई भी दुख होता है ना, बड़े से बड़ा दुख क्यों ना, गहरे से गहरा घाव क्यों ना, दुख खुद दुख सुसाइडल होता है, खुद सुसाइड कर लेता है वो। टिकता नहीं है यहाँ पे, ना सुख टिकता है ना दुख टिकता है। आप बेवजह परेशान होते हो। जी। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता आपके घर में कोई मर जाए तो नाचने लगो, या किसी के दुख में नाचने लगो, है ना। इसको जान लो ना। तो वो जो नृत्य है आत्मा का, उसको जान लो। वो निरंतर चल ही रहा है ना भाई, वो अखंडित नृत्य है। बड़े से बड़ा दुख भी ना खुद आपको छोड़ के चले जाता है, आपको उसको नहीं छोड़ना है, वो खुद आपको छोड़ के जाएगा, गारंटेड। क्योंकि जैसे आकाश में कोई भी चीज नहीं टिकती ना, वो आत्मा में कहां से टिकेगा फिर ये सब दुख और सुख और ये सारी चीजें। इसलिए हर हालत में बेफिक्र रहो। तो जो अपने आप को जानता है ना, वो सेलिब्रेट करता है मृत्यु में।
کیونکہ جو جانتا ہے کہ میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ مرے گا کیسے؟ تو اپنا آپ جو ہے نا پرم نشچنتتا ہے، بے فکری، پرم وشرام، تو اتنی نشچنتتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سمے ہی نہیں۔ اگلا چھڑ جس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اونلی دس مومنٹ، یعنی یہ پل ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی یہ پل 100 سالوں سے زیادہ ہے، اننتتا سے زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ جب آپ کو ایک ہی پل ملتا ہے جینے کے لیے تو یہ پل ہمیشہ سے زیادہ ہے، اس پوائنٹ کو سمجھو۔ ہمیشہ آپ کو ایک ہی پل ملتا ہے جینے کے لیے تو یہ پل ہمیشہ سے زیادہ ہوا نا۔ صدیوں سے زیادہ ہوا نا۔ کیونکہ آپ صدیوں میں تھوڑی نہ جیتے ہو، اس پل میں جیتے ہو، تو یہ پل صدیوں سے زیادہ ہے۔ تو اس پل میں نشچنت ہو کے جیو، بس اپنے ہی آپ میں۔ پرم نشچنتتا، پرم وشرام،
تو آپ کیا کرتے ہو؟ آنے والے پلوں کے لیے اس پل کی بلی دیتے ہو. اور اپنے جیون میں بٹورتے ہو بہت سارے دکھ. ارے آنے والے پلوں کی، صدیوں کی بلی دے دو، ہمیشہ کی بلی دے دو اس پل کے لیے. اس پل کے لیے جتنے پل آنے والے ہیں فیوچر میں، سب کی بلی دے دو. اور جیو اس مومنٹ میں بے تحاشا، بے فکر، بے خوف. جیسے اگلا پل کبھی آئے گا ہی نہیں، کہیں ہے ہی نہیں. Only this moment. परम निश्चिंतता में परम शांति में. تو کسی بھی طرح کا اسمرن نہ کرنا ہی بھگوت اسمرن. اور کسی بھی طرح کا چنتن نہ کرنا ہی آتم چنتن ہے. اپنے آپ میں مست جیو بس، کیونکہ آپ کے اترکت کہیں کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ پورا استتو آپ کا اپنا آپ ہے. آپ ہی ہو پورا استتو. استتو میں جیو، ویکتتو میں نہیں. تو سبھی کو پریم پرنام.